The next topic is preparation methods of alkyl halide and aryl halide. First we will go about the preparation method of alkyl halides. There are 3 points and 3 types by which we can prepare the alkyl halides. First one is from alcohol, second is from hydrocarbon and third one is from halogen exchange. मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो पिक किया है वो किया फ्रॉम अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स में भी जो है 4 टॉपिक्स जो हैं वो अपने पिक किए हैं मैंने. और अल्कोहल में हम 4 तरीके हैं, 4 मेथड्स हैं जिनसे अल्कोहल को मैं एल्किल हैलाइड में जो है कन्वर्ट कर सकता हूँ. फर्स्ट जो है वो अल्कोहल को मैं एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए हेलोजन एसिड का यूज़ कर सकता हूँ. सेकंड फॉस्फोरस हैलाइड का यूज़ कर सकता हूँ सेकंड कंडीशन में. थर्ड जो मैंने पार्ट लिखा है वो लिखा है थाइनिल क्लोराइड के लिए. और फोर्थ टाइप जो है वो है सोडियम ब्रोमाइड और पोटेशियम ब्रोमाइड से. ठीक है. और फर्स्ट पार्ट अगर मैं कहूँ अल्कोहल जो है, अल्कोहल को अगर हेलोजन एसिड से रिएक्ट करवाऊँ, इफ वी रिएक्ट द हेलोजन एसिड विद अल्कोहल then there is 2 conditions. If we use HCl as a halogen acid and alcohol as a alcohol 1 degree and 2 degree alcohol is present, then in this condition means 1 degree and 2 degree alcohol react with hydrochloric acid, then the catalyst as a catalyst ZnCl2 means zinc chloride will be used as a catalyst. Okay, without catalyst the reaction will not proceed and will not form the product. And if we use alcohol as a 3 degree, then we can say that there is no need to catalyst, and because of, you can say this is when we use the alcohol as a 3 degree, then the reaction is SN1. When we use the alcohol as a 1 degree and 2 degree, then the reaction will be proceed by the path of SN2. Okay. And if we use the halogen acid as HBr, hydrogen bromide is used as a halogen acid, then 48% HBr will be used with alcohol, and constant boiling of HBr and alcohol will form the alkyl bromide easily. थोड़ा इस रिएक्शन को मैं डिटेल से शो करूं तो अल्कोहल, इस रिएक्शन में 2 जो है वो मेजर रिएक्टेंट हैं, अल्कोहल और हेलोजन एसिड. दोनों की रिएक्टिविटी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर मैं चेक करूं तो अल्कोहल जो है, अल्कोहल में रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल की मैं बात करूं तो 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल जो है उनकी रिएक्टिविटी की मैं बात करूं तो 3 डिग्री अल्कोहल इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर दिस रिएक्शन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ stable 3 degree carbocation. We will already show that if we use the alcohol as a 3 degree alcohol, then reaction will be proceed from SN1 reaction, and in the SN1 reaction the carbocation will be formed, and if the alcohol is used as 3 degree alcohol, then 3 degree carbocation will be formed. Okay. So we can say in the reactivity of alcohol, 3 degree alcohol is the most reactive for this reaction, and 1 degree alcohol is least reactive for this reaction for the formation of alkyl halide. Okay. The next reaction, next reactivity of halogen acid with respect to alcohol, then we can say that HI, hydrogen iodide, is the most reactive, and hydrogen fluoride is the least reactive. Okay. If we talk about the order of the reactivity of HX with respect to alcohol, then we can say that HI is most reactive because iodide ion is a good leaving group, and we can say hydrogen iodide is the strongest halogen acid, and HF is the least acidic in the halogen acids. Okay. तो ये पहली और रिएक्शन है जिस रिएक्शन में हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल को मैं जो है वो एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकता हूँ. इसमें 2 तरीके बताए मैंने, HCl और HBr के. अगर HCl यूज़ करूँगा तो एल्किल क्लोराइड बनेगा, HBr यूज़ करूँगा तो HRBr बनेगा, एल्किल ब्रोमाइड बनेगा. ओके. सेकंड अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो फॉस्फोरस हैलाइड्स, तो फॉस्फोरस हैलाइड्स में भी यहाँ 2 तरीके हैं, 2 मैं फॉस्फोरस हैलाइड को यूज़ कर सकता हूँ, जिसमें नॉर्मली अगर मैं कहूँ फॉस्फोरस हैलाइड की अगर मैं बात करूँ तो एक फॉस्फोरस ट्राइक्लोर हैलाइड है और एक फॉस्फोरस का पेंटा हैलाइड है.
अगर मैं फॉस्फोरस का ट्राई हैलाइड यूज़ कर रहा हूँ अल्कोहल के साथ में, तो एक बात अपने माइंड में रख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 3 यूज़ किया है, इसीलिए मुझे अल्कोहल के भी 3 मोल्स यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, हैलोजन जो एटम है वो 3 मोल यूज़ हो रहे हैं इसमें, इसीलिए अल्कोहल को भी मैं 3 मोल यूज़ करूँगा। और एज ए रिजल्ट जो है वो 3x और 3rx जो है वो फॉर्म करेगा, और एज ए साइड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर फॉस्फोरस एसिड बनेगा। ओके, द नेक्स्ट इज PX5। याद ये रखना है, PX5 को जब हम यूज कर रहे हैं तो अल्कोहल का 1 मोल यूज होगा, और एल्किल 1 मोल ऑफ एल्किल विल रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ X and form the 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड, and the next X which react with the H and form the HX as the halogen acid. Okay, and the rest part is P and X3 which is react with the O and form the POX3. These are the side product of this reaction, and this is the major product and main product. क्योंकि हमें ये बनाना है इसलिए हम इसको मेन प्रोडक्ट कह रहे हैं। थर्ड अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो थर्ड रिएक्शन हम काम में ले लें थायोनिल क्लोराइड की। अगर मैं थायोनिल क्लोराइड के साथ में अल्कोहल को रिएक्ट करवाऊं तो अल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड फॉर्म करता है, और SO2 और HCl को साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में एस्केप करता है। और इस रिएक्शन में जैसे मैंने ऑलरेडी आपके सामने मेंशन किया है कि ये these are the gases, both are gases, so easily escaped from the mixture of reaction, and the pure alkyl chloride will be formed. Okay, जनरली अगर मैं कहूं तो इस रिएक्शन को डार्जन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, डार्जन प्रोसेस बोला जाता है, और ये डार्जन प्रोसेस जो है वो 2 कंडीशन में फॉलो होती है। अब मैं कह सकता हूँ कि ये डार्जन प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ pyridine हो सकती है। अगर मैं एब्सेंस ऑफ pyridine करूँ तो उस कंडीशन में यही रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन जो मैंने लिखी है एल्किल क्लोराइड बनाने की, ये एल्किल क्लोराइड बनाने की ये रिएक्शन SNI रिएक्शन से, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिएक्शन से प्रोसीड होगी और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगी। और सेकंड कंडीशन अगर मैं लिखूं तो इसी डार्जन प्रोसेस को अगर मैं प्रेजेंस ऑफ pyridine में करवाता हूं तो यही रिएक्शन SN2 रिएक्शन से कंप्लीट होगी, मींस बायमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से कंप्लीट होगी। ओके, तो ये वाला नेक्स्ट पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट जो था वो थायोनिल क्लोराइड वाला था, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि एल्किल क्लोराइड को इजीली बनाया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि अभी तक जितनी भी मैंने 4 रिएक्शंस लिखी हैं यहाँ पर, उनमें से सबसे बेस्ट मेथड जो बनाने का, एल्किल क्लोराइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड यही है। इसका का कोई रीजन पूछे देन वी कैन से दैट द साइड प्रोडक्ट्स आर gases so easily escaped. The fourth part is reaction of alcohol and sodium and potassium bromide, okay, with sulfuric acid. नॉर्मली अगर मैं इस रिएक्शन को प्रोसीड करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस रिएक्शन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, and alkyl bromide will be formed as a product, and with it sodium hydrogen sulfate and water will be used as a side product. If we use bromide then alkyl bromide will be formed, and if we use sodium iodide and potassium iodide then we can say the major product will be alkyl iodide, but must that the sulfuric acid is not used when we using the sodium iodide and potassium iodide. Okay, and in this condition instead of sulfuric acid we will use the 95% phosphoric acid. और जनरली अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि ऐसा क्यों होता है कि अगर इस रिएक्शन में जब मैं एल्किल आयोडाइड बना रहा हूं तो फॉस्फोरिक एसिड की जगह में सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ कर लूं तो क्या होगा, तो इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है, तो इसमें ये कहेंगे कि इसमें एल्किल आयोडाइड नहीं बनेगा,
एल्किल आयोडाइड एज ए प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा कोई अगर पूछे तो सोडियम आयोडाइड अल्कोहल से रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो जनरली मैं ये कहूँ कि आयोडाइड आयन जैसे ही रिलीज होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर यूज हो रहा है किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, आयोडाइड आयन का जो है वो ऑक्सीडेशन करेगा और ऑक्सीडेशन करके और आयोडीन गैस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो आयोडीन गैस जो है, आयोडाइड आयन जो है वो पहले ही आयोडीन गैस के फॉर्म में एस्केप हो चुका होगा बिफोर द रिएक्शन विद द अल्कोहल। ओके, सो जनरली ये कह सकते हैं कि हम ये रिएक्शन जो है वो इस तरह से कंप्लीट नहीं कर सकते। ओके, तो दीज आर द जो है वो यू कैन से कि दीज आर द 4 पार्ट्स बाय विच alcohol can convert into alkyl halide. Okay, so the next the preparation method of alkyl halide is from hydrocarbon. तो मैंने यहाँ 2 हाइड्रोकार्बन्स को लिया है जिनसे मैं एल्किल हैलाइड फॉर्म करूँगा। फर्स्ट है बाई एल्केन और सेकेंड है बाई एल्कीन। तो फर्स्ट जो बाई एल्केन प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं, तो व्हेन एल्केन रिएक्ट विद द हैलोजन यू कैन से in the presence of sunlight, then alkyl halide will be formed as a major product and HX will be formed as a side product. The reaction will be proceed by the help of free radical substitution reaction. Okay, for the understanding of this reaction we are taking an example like this: propane when react with the chlorine. Propane used as an alkane and X2 instead of alkane X2 Cl2 is used, and sunlight is present in this reaction, and by the SF reaction you can say there is 2 type of products are formed. First one is 1-chloro and second is 2-chloro. The reaction will proceed by the help of free radical substitution, and we can see that there is 2 types of carbons are present. First one is 1 degree carbon and second is 2 degree carbon, and when the hydrogen is replaced from the 1 degree carbon, then the product will be formed which is 1-chloropropane. Okay, and when the hydrogen will replace from the 2 degree carbon, then the 2-chloropropane product will be formed. And we know that when the hydrogen will replace from the 2 degree carbon, then 2 degree carbon free radical will be formed. So we can say 2 degree carbon free radical is the most stable than the 1 degree. So this one is the major product. Okay, and this is a minor product because 1-chloropropane will be formed by the replace of 1 degree hydrogen. Okay, and form the 1 degree carbon free radical which is the less stable comparing than 2 degree. And second reaction by the addition of HX on alkene. When alkene will react with the HX, then alkyl halide will be formed as a major product. We can say that in this reaction the pi bond will cleavaged and 2 sigma bonds are formed. So this is the part of addition reaction. This is the part of addition reaction, and we know that the alkene represent electrophilic addition reaction as a characteristics property of alkene. So the reaction will proceed by the help of electrophilic addition reaction. Okay, and we can take an example like when ethene react with the hydrochloric acid, then this one will be formed when pi bond will cleavaged and 2 sigma bonds are formed, and H and Cl will attach and will join the party of 2 newly formed sigma bonds, and ethyl chloride will be formed. Okay, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा। तो the reaction will proceed by the Markovnikov rule. मार्कोनिकोव रूल जो है वो जो हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं ऑर्गेनिक के जीओसी के अंदर। तो मार्कोनिकोव रूल जो है वो ये कहता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो प्रोसीड होगी उसमें जनरली जो इलेक्ट्रोफाइल होगा
वो इलेक्ट्रोफाइल उस जगह अटैच होगा जहाँ जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन जो है डेफिशिएंट होगा, और न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो नॉर्मली ये मैं कहूँ तो हाइड्रोजन जो है कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो लेस हो, तो वहाँ पर तो आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, और जहाँ पर हायर कंडीशन पे हो हाइड्रोजन ज़्यादा हो तो वहाँ पर H+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा। ओके, तो नॉर्मली कहते हैं ये एक मार्कोनिकॉफ रूल था, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोसीड होगी, और यहाँ पर मैं HCl की जगह, इसी की जगह इंस्टेड ऑफ HCl इफ़ वी यूज़ द HBr then we can say then in the presence of peroxide then the alkyl bromide will be formed but by the help of anti-Markovnikov। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर पेरोक्साइड की प्रेजेंस आ जाती है, अगर मैं यहाँ एरो के साइन पे पेरोक्साइड लिखा दिख जाता हमें, तो हम ये कहेंगे कि यही रिएक्शन जो पहले मार्कोनिकॉफ रूल से हो रही थी, मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन कम हो वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सबमिट होगा, ऐड होगा। तो अब की बार रिवर्ट होगा इसका, ठीक, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ये कंप्लीट रिएक्शन होगी। इसी को ही हम एंटी मार्कोनिकॉफ को ही खेरास लॉ के नाम से भी जानते हैं और पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक रिएक्शन है जिससे हम जो है वो क्या बना सकते हैं, एल्किल हैलाइड को फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो थर्ड जो है वो पार्ट इसका एडिशन ऑफ X2। एडिशन ऑफ X2 की अगर मैं बात करूँ तो ये रिएक्शन भी एक तरह से जो है एडिशन का ही पार्ट है। जनरली हम ये देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है और 2 सिग्मा बॉन्ड्स न्यूली फॉर्म हो रहा है, और दोनों जो सिग्मा बॉन्ड है उनके ऊपर 2 हैलोजन अटैच हो रहे हैं, और रिएक्शन कंप्लीट हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। CCl4 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट कंडीशन में हम ये जानते हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन प्रोसीड होती है, और कंप्लीटली जो है वो दोनों जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे उनके ऊपर एक एक ब्रोमीन जो है ऐड होगा, और नियर बाय जो है वो कार्बन के ऊपर हैलोजन ऐड हो रहे हैं, इसीलिए इसको बोल रहा हूँ मैं वाइसिनल डाई ब्रोमाइड। ओके, और जनरली अगर मैं ये कहूँ कि इस रिएक्शन को यूज़ कहाँ पर करते हैं, तो एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि एक लेबोरेटरी या लैब मेथड है, एक लैब मेथड है बाय विच वी कैन चेक दैट एनी ऑफ सब्सटेंस कंटेन और नॉट अनसेचुरेशन। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसेचुरेशन है कि नहीं है तो उसको मैं किससे चेक कर सकता हूँ, इस रिएक्शन से चेक कर सकता हूँ, क्योंकि ब्रोमीन जो एक रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और CCl4 कंडीशन में किसी भी उस सब्सटेंस से अगर रिएक्शन करता है जिसके अंदर अनसेचुरेशन है, मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ एडिशन रिएक्शन मीन्स क्लीवेज ऑफ पाई बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स, ओके, देन द फॉर्म्ड प्रोडक्ट विल बी कलरलेस। तो हम जनरली ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो ब्रोमीन था वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और किसी भी सब्सटेंस के अंदर वो ब्रोमीन के ऐड करने के बाद में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कलरलेस हैं। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि जो सब्सटेंस हमने यूज़ किया था वो सब्सटेंस किस तरीके का होगा, वो सब्सटेंस होगा अनसेचुरेटेड कंपाउंड होगा। तो जनरली जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये सारी रिएक्शंस जो हैं, बशीर जी सर, ये सारी रिएक्शन जो हैं वो हम ये कह सकते हैं कि एक मेथड है जिनसे अपने हाइड्रोकार्बन की हेल्प से हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, पोज कर दो। सो द नेक्स्ट पार्ट of formation of alkyl halide is from halogen exchange, and in the part of halogen exchange 2 reactions are here, and first is Finkelstein and second is Swart. In the Finkelstein reaction, alkyl halide will react with sodium iodide in the presence of dry acetone. Alkyl iodide will be formed as a product and sodium halide as a side product. Okay, and for the halogen there is chlorine and bromine will be used, means alkyl chloride and alkyl bromide will change in alkyl iodide. So we can say this is the method, this is known as Finkelstein, by which chloride and bromide substance will change in iodide. So we can say halogen will change into halogen, so this is known as a halogen exchange. Okay, and the concentrated thing is why here is acetone is used, because the side product sodium chloride and sodium bromide which is formed, this is precipitated in the dry acetone which facilitate the forward chemical
reaction and can easily form the alkyl iodide by the help of Le-Chatelier principle. Okay, so this is known as a Finkelstein reaction, and the second one is the Swart reaction. By the Swart reaction, we can change the chloride and bromide substances in the fluoride. Okay, and in this reaction, alkyl halide will react with the metallic fluoride and form the alkyl fluoride. For the metallic fluorides, we can use the silver fluoride, mercurous fluoride, cobalt fluoride and antimony fluoride. Okay, a simple reaction can seen by me that you can say methyl chloride will react with the silver fluoride and form the methyl fluoride and silver chloride as a major product. In this reaction, the chlorine will replace by the fluoride, so methyl fluoride is used as a major product, and this is the also part of halogen exchange. This is the part of halogen exchange where chlorine and bromine will replace by the iodine and iodide will be formed, and this is the reaction in which chlorine and bromine will replace by the fluorine, so fluorine will be form as a major प्रोडक्ट. और ये सारी जो रिएक्शंस हैं वो सारी फॉर्मेशन मेथड्स होगी एल्किल हैलाइड की. और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर हम जो एरिल हैलाइड्स हैं उसके बनाने के मेथड जो हैं वो डीपली स्टडी करेंगे, और वीडियो को अच्छे से देखें. और मैं आपको एक बार फिर कहना चाहूँगा कि शेयर करना ज़रूर, क्योंकि जिनको सबको वीडियो चाहिए और अच्छा मटेरियल एनसीईआरटी का चाहिए, उस एनसीईआरटी के मटेरियल को हमने यहाँ पर उतारने की बोर्ड पे कोशिश की है. और एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स टू टॉपिक्स बुक टू बुक जो है वो चलने की कोशिश की है, जिससे जो हम एनसीईआरटी की बुक्स के अकॉर्डिंग हम कितना लिख सकें उसको हम देख सकें कि अच्छे से मार्क्स कैसे गेन कर सकें. तो दबा के शेयर करना और लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब आपके जचे तो कर देना, बाकी शेयर जरूर करना. थैंक यू.